Radhe Radhe to everyone. So here in a very short span we will be just revising our circle notes. Now what is circle? A circle is a locus of a point which moves at a constant distance from a fixed point. We all know that radius is having a same magnitude always. Now if r is greater than 0, then r is the radius, and we know that 2r is equals to diameter. Area of circle is this, parameter is this, angle subtended at the center, this is our arc, okay, this is our segment. This we all know, we studied at the class 10th. Last point is angle subtended at the center of a circle is double the, okay, this is, okay, suppose this is your one angle and this, so this is double of this angle, है ना. So small theorems that we studied in this 10th, 9th and 10th class. Now general equation of circle is this, ठीक है. How center is found by this, ठीक है, minus g and minus f, and radius is given by this formula. Now we all know कि general equation of second degree, this second degree is given to us, है ना, a x square plus b y square plus 2h xy plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. ठीक है. This is representing a circle when a and b is not equals to 0 and when h is 0. ठीक है. This term needs to be 0. Locus of a point P represent a circle if its distance from two points A and B is not equal. ठीक है. Now general equation, okay. Now if your radius is 0, this is radius ना, ठीक है. Radius means r square. So if your r square is greater than 0, so obviously it is a real circle. If r square equals to 0, then it is a point circle, ठीक है. And if it is less than 0, then what will have an imaginary circle. Okay, now if in this entire equation your c is 0, it means it is passing from the through the origin. If your f is 0, ठीक है, this part is 0, then means center is on x axis, and if your g is 0, then means center is on your y axis. Just looking into the equation you can find कि क्या होंगे, ठीक है. Now equations of a circle in special cases, this is nothing. What are these cases is when your circle is lying in which quadrant. This is first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, and here it is fourth quadrant. ठीक है. तो first is when your r square is h square plus k square, then this equation results. Then you have this, ठीक है. There will be four cases when your circle is touching the x axis. What is happening out here कि your circle is touching the x axis, ठीक है. Then your equation is this. Then comes when your circle is touching the y axis, then its equation is different. Likewise, ठीक है. If a circle touches both the axes, then its equation is like this, ठीक है. You can see r is given here and center is also given out here. If a circle touches x axis at origin, x axis at origin it is cutting out, तो your center is also x minus a होता है ना, तो that will also be 0, and your radius is given this, ठीक है. These certain equations will be resulting out. If the circle touches the y axis, then again two cases will be there, ठीक है. प्लस माइनस हो जाएगा ना, that is why two cases. If a circle passes through the origin and cut the intercept, ठीक है, a here and b here, x intercept and y intercept,
on axis the equation of circle is this. Center you can find easily from there. Now position of a point with respect to a circle. So there are points, suppose x1 and y1, they are lying outside the circle, or there are some points, they might be here, they might be on the circle and they might be inside the circle. But how to find that, कैसे हम पता करें उसको? तो सर्कल की इक्वेशन इज गिवन टू अस, ठीक है. एंड नाउ व्हाट विल डू, जो हमारे पास पॉइंट दिए होंगे x1 एंड x2, x1 एंड y1, वो यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है. अगर वो आपका पॉजिटिव आया तो इट मीन्स आपका वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, सर्कल के बाहर. अगर वो पॉइंट जो आपने यहाँ पे लगाया जहाँ पे x1 और y1 की वैल्यूज़ दी है, सपोज हमारे पास यहाँ पे 1 एंड 2 दे दिया पॉइंट, ठीक है. तो x की जगह 1 डालेंगे, y की जगह 2 डालेंगे, एंड देन वी विल सी कि पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है या ज़ीरो आता है. तो पॉजिटिव आया तो पॉइंट लाइंग आउटसाइड, अगर ज़ीरो आया तो पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल, और अगर नेगेटिव आया तो पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल, ठीक है. ऐसे होगा फिर. नाउ द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द सर्कल. कोई पॉइंट है, उसका क्या डिस्टेंस होगा सर्कल से. तो हम क्या करेंगे, एस जो भी हमारे पास इक्वेशन दी है उसको इक्वेट कर देंगे इक्वल्स टू ज़ीरो. पॉइंट दिए हैं x1 एंड y1 बी अ पॉइंट, ठीक है. इफ़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल विच इज़ पासिंग थ्रू द सर्कल एट p एंड q, देन हमारा AP, जो AP होगा वो क्या हो जाएगा, AC माइनस आर, लीस्ट डिस्टेंस, सबसे कम डिस्टेंस, और AQ क्या हो जाएगा, हमारा सबसे बड़ा डिस्टेंस, ठीक है. तो ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे AC एक जो पॉइंट दिया है हमारे पास, डिस्टेंस दिया है, उसमें से रेडियस को माइनस कर देंगे तो लीस्ट डिस्टेंस आ जाएगा, रेडियस को प्लस कर देंगे तो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा. लाइन एंड अ सर्कल, तो लाइन इक्वल्स टू ज़ीरो कर देंगे. एस जो हमारे पास मतलब लाइन की इक्वेशन होगी L और सर्कल की इक्वेशन होगी S, तो दोनों को इक्वेट टू इक्वल्स टू ज़ीरो. If R be the radius of a circle and P be the length of the perpendicular from the center of circle, ठीक है. ये हमारे पास center of circle से P आ रहा है, ठीक है. तो योर दिस P is greater than R, then line is outside. अगर ये जो P है हमारा डिस्टेंस जो आया ये ग्रेटर देन R, ऑब्वियसली अगर ये रेडियस से बड़ा होगा तो आपका क्या होगा, लाइन आउटसाइड ही आएगी. अगर इक्वल्स टू R होगा तो लाइन टच करेगी सर्कल को, ठीक है. और अगर लेस देन आर होगा तो लाइन क्या होगी, ऑब्वियसली आपका कॉर्ड बन जाएगी, है ना. और अगर ये इक्वल्स टू ज़ीरो होगा तो आपकी लाइन कहाँ से पास करेगी, फ्रॉम द सेंटर, मीन्स ये क्या हो जाएगी, डायमीटर हो जाएगी, है ना. ये केसेस बनेंगे. ग्रेटर पे आउटसाइड होगी लाइन, इक्वल्स टू पे टचेज द सर्कल, लेस पे क्या होगा, कॉर्ड बन जाएगी, और इक्वल्स टू ज़ीरो पे डायमीटर ऑफ अ सर्कल. दिस इज़ इन मतलब फास्ट मोड वी आर डूइंग, कि एक हमारे पास फॉर्मूला बुक बन जाएगी कि यस व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर, ठीक है. नाउ लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल. अच्छा, लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट होते हैं कि हम कहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कितना किस पॉइंट पे काट रहे हैं. तो वो क्या आ जाएगा आपका 2r² माइनस p² आपका यही डिस्टेंस होगा, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन, जो लाइन हमारे पास गिवन होगी, और जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी, तो वो हम कैसे निकालेंगे, 2√a² 1 + m² माइनस c² अपॉन 1 + m². ये भी इक्वेशन गिवन है, सर्कल की भी इक्वेशन गिवन है. We just have to compare both these equations, ठीक है. Now condition of tangency. Line दी है, it is 0, touches the circle s equals to 0 if length of perpendicular drawn from the center of a circle to the line is equal to the radius, ठीक है. अगर ये आपका perpendicular जो drawn था from center that is equals to radius, this is obviously, है ना, अगर आपका
ये आपका रेडियस है और ये आपका परपेंडिकुलर है, तो ये चीज़ आपकी टेंजेंट ही बनेगी। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कब होगी? P इक्वल्स टू R, देन देयर इज अ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, तो सर्कल की इक्वेशन दैट इज गिवन टू अस, और ये लाइन हमारी टच कर रही है, तो C जो है हमारा, वो C क्या होगा? C इज प्लस माइनस A 1 प्लस m स्क्वायर। If this is greater than 0, then line meet the circle at different and real points, different unique points पे और real points पे. If c square equals to a square 1 plus m square, line will touch the circle. ठीक है, and if it is less than 0, then line will meet circle at two imaginary points पे ये meet करेगी. ठीक है, these are the conditions for tangency, very important. Now intercepts made on coordinate axis. ओके, कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये तो हमने देख ही लिया था, अगर हमारा ये एक्स एक्सिस होगा तो वहाँ पे हमारा वाई पार्ट 0 हो जाएगा, है ना, और अगर हमारा वाई एक्सिस पे होगा तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट ये बनेगा और एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट ये बनेगा। ठीक है, नाउ सर्कल इक्वेशन इज गिवन, इट कट्स एक्स एक्सिस इन टू रियल कॉन्साइडेंट और इमेजिनरी पॉइंट्स। अच्छा, ये कैसे होगा? अगर आपका जो जी स्क्वायर है ग्रेटर देन सी होगा तो ये रियल पॉइंट्स हो जाएंगे, इक्वल्स टू सी होगा तो कोइंसिडेंट्स हो जाएंगे, एंड लेस देन सी हो जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे? इमेजिनरी हो जाएंगे, ऑब्वियसली, है ना। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एंड दिस इज सीरियसली वेरी इंपॉर्टेंट, आने ही आना है इसका एक क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ही आपको लग गया कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट करना है तो एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख लेते हैं? एक्स इंटू एक्स वन हमें पॉइंट गिवन होगा। ठीक है, वाई स्क्वायर को हम लिख देंगे वाई इंटू वाई वन। ठीक है, एक्स को हम लिख देंगे एक्स प्लस एक्स वन अपॉन टू। ठीक है, और y को हम लिख देंगे y प्लस वाई वन अपॉन टू, और सिंपल t इक्वल्स टू 0 कर देंगे। ठीक है, ये t क्या हो गया? एक तरह से इक्वेशन, जो आपके पास ये इक्वेशन दी है ना सर्कल की, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? एक्स इंटू एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई इंटू वाई वन, फिर 2g एक्स की जगह एक्स प्लस एक्स वन अपॉन टू, वाई की जगह वाई प्लस वाई वन अपॉन टू, और प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपके पास पूरी इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल, तो ये आ जाएगी हमारे पास, है ना, एक्स इंटू वही किया हमने। स्लोप फॉर्म फ्रॉम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ m द लाइन दिस, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस a 1 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इज अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल दिस एंड इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज दिस। अगर आपको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी, और आपको पूछ लिया जाए कि व्हाट आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये आपको डायरेक्ट लर्न करना ही पड़ेगा, है ना। ए एम ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर अंडर रूट, दिस इज प्लस माइनस ए 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ normal to a curve at any point p of a curve is the straight line passes through p and is perpendicular to the tangent at p। ठीक है, नॉर्मल टू द कर्व होनी चाहिए, वो स्ट्रेट लाइन होती है, वो p से पास करती है, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होनी चाहिए, ऑब्वियसली, है ना, ये वाले पॉइंट। तो इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल टू द सर्कल दिस, वो क्या हो जाएगी हमारी? y माइनस वाई वन प्लस एफ एक्स वन प्लस जी और x माइनस एक्स वन, दिस इंटायर। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल दिस एट एनी पॉइंट, ये हमारे पास ये आ जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, इक्वेशन ऑफ एनी नॉर्मल टू द सर्कल दिस
y equals to mx, where m is the slope of normal. Then equation of any normal to the circle, this ये हमारे पास y plus f m x plus g. This you have to keep in mind कि आपको mind में रखना पड़ेगा, ठीक है. Now normal to the circle always passes through the center. Obviously है ना, perpendicular होगा तो आपका center of circle से pass करेगा ही करेगा. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं हम, एक्स वाई वन माइनस एक्स वन वाई वन वाई इक्वल्स टू ज़ीरो. दिस पर्टिकुलरली, ठीक है. इक्वेशन ऑफ एनी नॉर्मल टू द सर्कल, दिस इज वाई इक्वल्स टू एम एक्स. नाउ लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, हाउ टू फाइंड की लेंथ निकालनी है हमको. अंडर रूट एस वन हो जाएगा. फ्रॉम एनी पॉइंट पी, किसी भी एक पॉइंट पी से टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल विच आर रियल, कोइंसिडेंट और इमेजिनरी अकॉर्डिंग एज पी लाइज आउटसाइड ऑन और इनसाइड. ठीक है, जो भी हमने बताया था ना, पी पॉइंट कैसे हम पता करेंगे. एक पॉइंट है वो बाहर लाई कर रहा है, ऑन लाई कर रहा है, या वो जैसे पी जो था वो आर से बड़ा था, इक्वल्स टू आर था, और आर से छोटा था. ठीक है, तो वो पी पॉइंट लाई करेगा. फिर हमें क्या निकालना है, उसका डिस्टेंस निकालना है. तो जैसे यहाँ पे हम पी क्यू एंड पी आर भी टू टेंजेंट्स, इक्वेशन दी है हमारे पास सर्कल की, ये देन पी क्यू इक्वल्स टू पी आर इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पी. तो ये हमने इसको अंडर रूट एस वन कर देना है. यहाँ पे जो भी हमारे पॉइंट्स है, बस हमें वो एक्स और वाई की जगह वो पॉइंट्स पुट करने हैं. ठीक है. Now from a given point P, two tangents PQ and PR can be drawn to the circle. Their combined equation S into S1 is t square, where S equals to 0 is the equation of circle, t equals to 0 is the equation of tangent. S1 is obtained by replacing x by x1, y by y1 in S. ठीक है, क्या करना है हमें, ए जो हमारे पास पॉइंट्स दिए होंगे ना पी में, एक्स वन एंड एक्स टू, टू टेंजेंट्स ड्रॉ कर देने हैं हमें, और एस इंटू एस वन करेंगे तो वो टी स्क्वायर के इक्वेट होगा. तो हम क्या करेंगे, एस इक्वल्स टू ज़ीरो, वो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी, सर्कल हो जाएगी. ठीक है, और एस वन हम कैसे, एस वन कैसे आएगा, जो भी हमारे पास पॉइंट्स दिए वो वैल्यूज़ डाल के, वो स्पेसिफिक पॉइंट्स. I have already uploaded many questions of circle on the basis of this theory only. This is just a formula book itself कि ताकि थोड़ा याद आ जाए theory part. ठीक है. Now equation of a chord whose middle point is given. So equation of the chord of a circle, ये circle की equation हमारे पास given है. ठीक है, whose middle point P है, x1 y1 is given, और स्लोप हमारा y1 ओवर x1 हो जाएगा. स्लोप ऑफ ए बी जो है वो माइनस एक्स, ऑब्वियसली एक स्लोप निकाल दोगे दूसरा परपेंडिकुलर से, क्योंकि परपेंडिकुलर का स्लोप यही होता है ना, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड क्या हो जाएगी, y माइनस y1 माइनस x1 ओवर y1 x माइनस x1. ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x x1 प्लस y y1 x1 स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर. ठीक है, और यह है t इक्वल्स टू s1. Diameter of a circle, the locus of middle points of a system of parallel chords of a circle is called diameter of that circle. The diameter of a circle correspond to the system of parallel chords. तो उसको हम y equals to mx plus c, वो क्या आ जाएगा हमारा, ये x plus my equals to 0. The locus of middle points of a system of parallel chords of a circle is called diameter of that circle. The diameter of the circle corresponds to parallel chords, वो हमारा ये आ जाएगा. Every diameter passes through the center. Obviously every diameter is perpendicular to the system of parallel chords. ठीक है, ये है डायमीटर, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा कॉर्ड्स के. कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल्स,
दो हमारे पास सर्कल्स दिए हैं, ठीक है, ये है और ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड हो जाएगा। तो दो सर्कल की इक्वेशन है, तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड क्या हो जाएगा, S1, दोनों इक्वेशंस को माइनस करके इक्वल्स टू 0। द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड इज दिस आर, यही हमने लेंथ का फॉर्मूला किया था, R1 मतलब R का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, तो वो 1 और 2 लग जाएगा दोनों तरफ, ठीक है। While using the above equation of common chord, the coefficient of x square and y square in both equation should be equal. Obviously तभी सर्कल है ना, अगर ये डिफरेंट हो जाएगा, हमें कॉमन एक ये है एक ऐसे, तब तो कॉमन कॉर्ड हो ही नहीं सकती ना। टू सर्कल टचेज ईच अदर इफ लेंथ ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड इज 0, है ना। यहाँ पे कॉमन कॉर्ड होगी, लेकिन यहाँ पे तो हमारा क्या होगा, कॉर्ड 0 होगी। मैक्सिमम लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, हाँ है ना, ये है हमारा, और कोई भी सर्कल अगर आप ले लो, छोटा वाला ही मान लो, तो हमारा जो कॉमन कॉर्ड हो सकता है वो मैक्सिमम क्या होगा, उसका डायमीटर ही हो सकता है, स्मॉलर वाले का ही। नाउ ये हमारे पास पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स। अब देखो इसमें क्या करना है, C1 एंड C2 क्या है हमारे सेंटर्स, R1 एंड R2 क्या है रेडियस। तो अगर हमारा C1 C2 दोनों का सेंटर मल्टीप्लाई करो, वो ग्रेटर होगा दोनों के रेडियस ऐड करने पे, तो दे विल नॉट इंटरसेक्ट, वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इसका ना, वो नहीं करेंगे। या अगर ये कंडीशन आ जाती तो वो पूछ लेंगे बताओ नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने हैं, तो अगर ये कंडीशन है तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने हो जाएंगे, 4, ठीक है। अगर ये कंडीशन आ जाती है C1 C2 लेस देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2, तो एक सर्कल दूसरे के अंदर होगा और वहाँ पे कॉमन टेंजेंट्स एक भी नहीं होगा, 0 होंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट आ जाएंगे, आपको पूछ लेंगे फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, और आपके पास सेंटर्स दिए होंगे, रेडियस दिए होंगे, यू हैव टू सॉल्व। देन C1 C2 इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ठीक है। एक्सटर्नल टच हो जाएंगे, और ना वहाँ पे आपके कॉमन टेंजेंट्स कितने हो जाएंगे, 3, आप देख सकते हो यहाँ पे ड्रॉ भी किया है, ठीक है। अब C1 C2 इक्वल्स टू हो जाएगा R1 माइनस R2, तो क्या होगा, इंटरनल टच और कॉमन टेंजेंट कितने होंगे, 1 हो जाएगा। R1 माइनस R2 C1 इंटू C2 और R प्लस R2 इस दोनों में लाई करेगा, ये कंडीशन होगी, तो इंटरसेक्शन एट रियल पॉइंट्स, और 2 हमारे कॉमन टेंजेंट्स आ जाएंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये टेबल, आप एक बार देख लेना इस टेबल को, ठीक है। Now point of intersection of common tangents T1 and T2, point of intersection of indirect and direct common tangents divides C1 and C2 internally and externally, किस रेशो में, R1 और रेशो R2 में। ऑब्वियसली होगा ही ना ये, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, पॉइंट्स T1 एंड T2 जो है हमारे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कॉमन, तो वो किस रेशो में डिवाइड करेंगे, R1 माइनस R2 में। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स वो हमने पढ़ा था, एस दोनों सेंटर्स दोनों की इक्वेशन को माइनस करना, इक्वल्स टू 0 कर देना है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C1 एंड C2 इन द रेशो ऑफ, किस में होगा, R1 रेशो R2, इंटरनली और एक्सटर्नली, किसी भी रेशो में हो सकता है। दीज आर सम ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने अभी किए उनमें से या कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होगा। द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड करेगा एंगल अल्फा एट द सेंटर, ठीक है। तो फिर वहाँ पे क्या इक्वेशन बन जाएगी, अल्फा का, अगर वो अल्फा कर रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए कॉस अल्फा बाय 2, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अ वेरिएबल पॉइंट moves in such a way that sum of square of the distance from the vertices of a triangle remains constant, then its locus is a circle whose center is centroid of the triangle। एक वेरिएबल पॉइंट वो इस तरीके से मूव करेगा कि उसका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस एक ट्राइंगल के वर्टिसेस से, ठीक है, अगर जैसे ये ट्राइंगल है, इनके वर्टिसेस से ये इक्वल होगा, तो ये सर्कल क्या होगा, सेंटर भी होगा और सेंट्रॉइड भी होगा, ठीक है। इफ अ पॉइंट हुज वेयर द लाइन्स दीज मीट द
कॉन्सेंट्रिक हो जाएगा। कब कॉन्साइक्लिक होगा ये, मतलब एक दूसरे के साथ होगा जब ये दोनों जो लाइन्स है वो मीट करेगी और a1 a2 इक्वल्स टू b1 इंटू b2। इफ द लाइन lx प्लस my प्लस n इक्वल्स टू 0 इज अ टेंजेंट टू द सर्कल दिस, तो ये हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी। इफ द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल बी r एंड इट टचेज द बोथ एक्सिस, तो हम इसको g इक्वल्स टू f रूट c r कर लेंगे। इफ द सर्कल दिस टचेज द x एक्सिस एंड y एक्सिस, तो ये होगा जी स्क्वायर इक्वल्स टू सी और एफ स्क्वायर इक्वल्स टू सी। ठीक है। लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, ये हमारे पास ये दो सर्कल की इक्वेशंस है और लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड कैसे आ जाएगी, 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्कल दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो वो हमारा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल्स टू 2c हो जाएगा। इफ द लाइन दिस इज नॉर्मल टू द सर्कल, तो ये b इक्वल्स टू एम ए प्लस सी होगा। इफ द टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट दिस मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द पॉइंट ए एंड बी एंड ओ इज ओरिजिन, तो एरिया क्या हो जाएगा r4 ओवर 2ab। ठीक है। इफ o इज द ओरिजिन एंड ओ क्यू आर टेंजेंट टू द सर्कल दिस, देन सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल वो क्या आ जाएगा आपका -g/2 -f/2। सो इन वेरी शॉर्ट मैनर ये आपको एक समरी दी है, तो आई होप आपका रिविजन्स के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इवन फॉर मेकिंग नोट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच।